जी आप स्टार्ट कर दो। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु याना समर्थजीवानामस्माकं सर्वदा स्मृता। बुलकवासी पूज्य श्री निरंजन शास्त्रीजीની પુણ્ય સ્મૃતિમાં કેવળ અને કેવળ પ્રભુ પ્રસન્નતા પ્રીત્યર્થે અને આપણને સર્વને કંઈક જાણવા મળે, શીખવા મળે, આપણા સર્વનું ભાવ પોષણ થાય એ હેતુથી નિકુંજ નાયક શ્રી ગોવર્ધન ધરણ દેવદમન શ્રીનાથજી બાવાના દિવ્ય ચરિત્રનું યશોગાન અને શ્રવણ કરવાને માટે એક વિનમ્ર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ઠાકોરજીની અનહદ કૃપા છે કે આ વાણીને પ્રભુ સ્વીકારે છે. ભગવાને આપેલી વાણી, ભગવાને જ આપેલી બુદ્ધિ, સમજણ, જે પણ કંઈક છે શ્રીમદ ભાગવતના મત મુજબ દરેક ઇન્દ્રિયોને આપણે પ્રભુમાં જોડીએ. આ જ વાત શ્રી આચાર્ય ચરણ આપણને સમજાવે છે અને એના જ અનુસંધાનમાં આપણે ભગવાનના જે દિવ્ય ચરિત્રો છે એને સતત શ્રવણ, સ્મરણ, મનન આ બધું કરીએ છીએ. તો ભગવાન જીવનમાં આવો અવસર આપણને આપે, સમય આપે, એનો લાભ લેવાને માટે આપણે સર્વ ભેગા થઈને પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા આપણી પર છે. પુનઃ એક વખત અમારા પરિવાર તરફથી વિનંતી કરવામાં આવી, આપ સર્વ જેમનાથી સુપરિચિત છો, આગળ આપ સર્વે આપ શ્રીના વચનામૃત શ્રવણ કર્યા છે. એવા આપણા સર્વના આદરણીય, પૂજનીય અને એનાથી પણ આગળ કહીએ તો લાડીલા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 180 આપ શ્રી ગોવિંદરાયજી મહોદયશ્રી મોટું મંદિર મુંબઈનું અને હાલ વાપીમાં બિરાજમાન છે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ શ્રી વલ્લભકુલ કુલ પરંપરામાં આવે છે. એની સાથે સાથે જે સૌજન્ય, સદભાવ હોય, વિપ્રોને માટેનો આદર ભાવ હોય અને એનાથી પણ આગળ કહીએ તો એક આત્મીયતાનો સંબંધ, વર્ષો પહેલા જે પૂર્વજોનો સંબંધ હતો એવું લાગે. જેવી રીતે શ્રી આચાર્ય ચરણ ભક્તિવર્ધિનીમાં એક બીજને
ધીરે ધીરે કરીને નવપલ્લવિત કરે એવો જ કંઈક અનુગ્રહ આપશ્રીનો અમારી પર થયો છે, જેને અમે અનુભવી રહ્યા છીએ. તો આપણા સર્વની પર કૃપા કરી કેવળ શબ્દોને માટે નહીં પણ વાસ્તવિકતા કહું આપ સર્વને, ખૂબ જ વ્યસ્તતા હોવા છતાં આપશ્રી પોતાના વચનામૃતમાં હમણાં ઘણા સમયથી આવી રીતના સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પધાર્યા નથી, એ છતાં પણ કેવળ અને કેવળ ભગવત કૃપા અને આપશ્રીનો અનુગ્રહ અને એનાથી આગળ વિચારીએ એક સ્નેહનું બંધન, એ બંધનથી ગમે એટલું બાંધીએ એ છતાં પણ ન બંધાય. એ છતાં પણ જેવી રીતે શ્રી ઠાકોરજી સ્નેહના બંધને બંધાયા હતા, એવી જ રીતે આપશ્રી અમારી સાથે અનુગ્રહના બંધનથી બંધાયા. એ અમારા સર્વનું સૌભાગ્ય છે. તો આજના દિવસે ખૂબ જ વિનમ્રતાપૂર્વક અમારા સમસ્ત પરિવાર તરફથી, તેમજ જે વૈષ્ણવ દેશ વિદેશના વેબિનારના માધ્યમ દ્વારા શ્રીનાથજી ચરિત્રામૃત શ્રવણ કરી રહ્યા છે, આપણને સર્વને કંઈક વધારે માર્ગદર્શન મળી શકે, આપણે સર્વ ભેગા થઈને કંઈક વધારે જાણીએ એવી જિજ્ઞાસા વૃત્તિ રાખીએ અને આપ શ્રીના યુગલશ્રી ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરી અને વિનંતી કરું કે આજના જે વચનામૃત છે એનો મંગલ આરંભ કરે. અસ્તુ. श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः. नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टि मार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु. मायावाद तमो निरासन पटु श्री लक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभास्तान् बुधवरो वादेषु संख्यावतः शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्री वल्लभार्य प्रभु. न मंत्रे न तंत्रे न च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु. नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते. श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः. उपस्थित समस्त शास्त्री वर्ग ने, विद्वान वर्ग ने मारा खूब खूब नमस्कार एवं च समस्त वैष्णव प्रियजनों ने खूब खूब शुभाशीष. આજે ભાદ્રપદ શુક્લ નવમી એટલે એ દિવસ જે દિવસથી સુખદેવજીએ કથાનું પ્રારંભ કર્યું અને રાજા પરીક્ષિતને પૂર્ણિમા સુધી આ બધું શ્રવણ કરાવ્યું. તો આજે શ્રીમદ ભાગવતજીનું વ્યાખ્યાન શુકપ્રોક્ત આજથી પ્રારંભ થયું છે એવું મહાત્મ્યમાં આપણે ભણીએ છીએ અને જાણીએ છીએ. તો એટલે મને આજે બહુ પ્રસન્નતા છે કે આજના દિવસથી મને આરોગ્યનો લાભ થયો. એના પછી ફરીથી આજથી ઉપદેશ કરવાનો અને કઈ ને કઈ સત્સંગ કરવાનું જે આજથી મને લાભ મળ્યું છે એના માટે હું બંને શાસ્ત્રીજી પિતા પુત્રને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહું છું, આભારી માનું છું. અને મને ફરી એકવાર હું આગ્રહ કરું છું કે કેમ કે મારી ગુજરાતી એટલી સારી નથી તો પ્લીઝ અલાઉ મી કે હું રાષ્ટ્રભાષામાં આજનું વિવેચન કે વ્યાખ્યાન જે છે એ હું કરું. તો હવેથી હું આગળ હવે રાષ્ટ્રભાષામાં મારા આજના વક્તવ્યને હું આપીશ. અને આજે તો હું સ્પષ્ટ કહું છું કે જે સંપ્રદાયની સમજ કે સંપ્રદાયની જે મંદિરોની ભાવના મને સમજમાં આવી છે આજે હું એ બધું આપના સમક્ષ રજૂ કરીશ. તો એ જ વર્ણન કરીશ કહેવાનું તાત્પર્ય. તો કહેવાનું મારું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે ગ્રંથો તો ઘણા છે, ભાવના ગ્રંથો હું લાવ્યો પણ છું કે જે આપ બધાને બતાવું કે આના દ્વારા તમે લોકો એકદમ ડીપ સ્ટડી ઓફ ધ પ્રેઝન્ટ મેટર આપ કરી શકશો. પરંતુ એ બધાને સ્ટડી કરતી પહેલા આપણી વિચાર દૃષ્ટિ કે આપણી પેનોરામિક એક સર્વે કરવું કે જેને કહીએ વિહંગાવલોકન, બર્ડ્સ વ્યૂ લેવું. તો કેવી રીતે એ બધામાં આપણને આપણી દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ
આજે એ મારા દૃષ્ટિકોણથી હું એ સ્પષ્ટ કરીશ. તો હું ગ્રંથોની વધારે ચર્ચા કદાચ ન પણ કરી શકું, પણ સબ્જેક્ટ મેટર જે આજે મને આપેલો છે એના વિષયમાં જે માહિતી મારા પાસે છે અને જેટલું જ્ઞાન એટલે જે મને વાસ્તવમાં અનુભવથી જે મારી સમજ સંપ્રદાયમાં ડેવલપ થઈ છે, આજે હું આપ બધા સાથે એ શેર કરવા માંગીશ. तो आई विल स्टार्ट इन राष्ट्रभाषा हिंदी नाउ. तो मैं खास, जैसे मैंने मंगलाचरण में अभी इस समय कहा कि नमो नमस्ते स्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्को योगिनाम निरस्त साम्याति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः. भगवान का नित्य रमण जिस धाम में है वो भगवान का नित्य धाम ही मंदिर है. भगवान जहां अपनी आदि शक्ति आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ नित्य विद्यमान है, जहां पे आप एक रूप में विराज रहे हैं. जैसे अपने यहाँ बहुत से पुष्टि मार्ग में मंदिर ऐसे हैं कि जहां केवल लालन विराजते हैं, जहां केवल लड्डू गोपाल, बालकृष्ण लाल, नवनीत लाल आप विराजते हैं, वहां सब जगह कोई स्वामिनी जी नहीं विराजते हैं. पर अपने यहाँ आपने विचार करके देखा होगा कि प्रायः सभी लालन जो होते हैं वो गौर स्वरूप होते हैं, जबकि अपन शास्त्र में कृष्ण को कृष्ण वर्ण का आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृणतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता. तो अपन लोग जानते हैं कि ठाकुर जी तो घनश्याम है, सांवरो मंगल रूप निधान है, तो वो तो सांवरे हैं. लेकिन अपने यहाँ देखोगे तो आप ठाकुर जी गौर स्वरूप हैं. और देखो उससे विपरीत दाऊ जी का वर्णन, बलभद्र जी का, बलदेव जी का वर्णन सर्वत्र शास्त्र में गौर है, लेकिन अपने यहाँ दाऊ जी श्याम स्वरूप में विराजते हैं. तो दाऊ जी की अपने यहाँ गौरता श्याम रूप में वक्रम ब्रजेश सितोयोर के हिसाब से है. और ये जो गौरता, जो सर्वांग गौर हो चुके हैं, ये राधा जी के आवेश से ठाकुर जी के गौर श्रीअंग में आप विराजमान रहते हैं. इसलिए सारे लालन जो हैं वो सांवरे होते हुए, घनश्याम होते हुए भी अपने यहाँ गौर रूप में विराजते हैं. तो ठाकुर जी जहां अकेले भी विराज रहे हैं, वहां भी प्रभु चाहे बाजू में वेणु जी के रूप में, माला जी के रूप में, थाक में मुख्य स्वामिनी जी, मणकाओं में चारों यूथाधिपति, ऐसे अलग अलग भावनाओं से भावित और सेवित अपने यहाँ ठाकुर जी कभी भी बिना स्वामिनी जी के तो नहीं विराज रहे. कुछ नहीं तो कम से कम श्री झारी जी के रूप में यमुना जी बाजू में विराज रहे हैं. तो अपन देख सकते हैं कि अपने यहाँ जो आर्ष वैदिक युगल उपासना है, वो युगल उपासना का ही क्रम अपने यहाँ दिया हुआ है. अब सदा सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वर स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे क्रीडन वृंदावने स्थित. ये एक सुंदर वाक्य अपने को अपने शास्त्रों में मिलता है कि जब हम सेवा करें, जैसे सेवा से संबंधित अपने जो प्रमाण वाक्य हैं वो सब वाक्य क्या हैं, जैसे सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपा. तो ये सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपा जैसा है, तो वहां पे ये भी है कि सदा सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वर. अब जब हम गोकुलेश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां अपने आप ही बाल भाव, मतलब नंद राजकुमार या यशोदोत्संग लालित प्रभु की सेवा स्पष्ट हो जाती है. और जब हम कहते हैं कि स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे, तो वहां गोपिका वृंदे में जब स्मरण करने बैठो तब तुम किशोराकृति का स्मरण करो, सेवा करो बाल भाव से. और जब आप ध्यान करो, जप करो, स्तोत्र पाठ आदि करो, तब आप जो स्वरूप ध्यान करो वो किशोराकृति करो. किशोराकृति में दो वस्तु हैं, या तो मोहनाकृति मदन मोहन जी के स्वरूप में, गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप में ध्यान करो, और या गोवर्धन धर के रूप में आप, श्रीनाथ जी के रूप में आप उनका ध्यान करो. तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले एक वस्तु ये समझो कि जिनके मंदिर बना के या जिनको मंदिर में पधरा के अपन जिनकी सेवा करने वाले हैं, वो अपने आप में अपने सेव्य दो भावों से तो भावित हैं और सेव्यमान हैं. एक है उसमें वात्सल्य भाव जिसमें बाल भाव आएगा, दूसरा आएगा माधुर्य भाव जिसमें आप किशोर रूप से विराजेंगे. तो कुमार रूप से किशोर रूपता जब आएगी तब श्री गोवर्धन धर या अन्य अन्य जो भी अपने भगवत स्वरूप विराजते हैं, ठाड़े स्वरूप जिनको पुष्टि मार्ग में संबोधन दिया जाता है, ये जबरदस्त प्रयोग है ठाड़े स्वरूप और गादी के स्वरूप. अपने यहाँ मंदिर में अपन लोग जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो मंदिर की व्यवस्था पे आज मुझे शास्त्री जी ने आग्रह किया है कि मैं खास बोलूं. तो सबसे पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं
कि जब हम स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे क्रीडन वृंदावने स्थित बोलते हैं, तो वृंदावन में क्रीड़ा करने वाले जो भगवान गोपीजनों के मध्य में विद्यमान है, अर्थात श्री गोपीजन वल्लभ। तो श्री गोपीजन वल्लभ प्रभु का अपने को ध्यान, नाम, स्मरण, जप ये सब करना है। और सेवा जब हमको करनी है तब हमको बाल भाव से और नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित प्रभु के रूप में ही सेवा करनी है। ऐसा क्यों करनी है समझो। ऐसा इसलिए करनी है क्योंकि किसी के यहाँ भले चित्र स्वरूप श्रीजी बाबा विराजते हो, किसी के यहाँ श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष स्वरूपाकृति विराजते हो, किसी के यहाँ मदन मोहन जी विराजते हो, भले ठाड़े स्वरूप विराजते हो, लेकिन एक वस्तु समझना, इस देह से लौकिक सांसारिक जगत में गोपीजन वल्लभ प्रभु निकुंज नायक की सेवा जीव द्वारा गम्य नहीं है। इसलिए ठाकुर जी भक्त परवश होके अपने ऊपर कृपा करके भगवान श्री गोपीजन वल्लभ निकुंज नायक रास नायक भी नंद राजकुमार यशोदोत्संग लालित व्रजजन सर्वस्व होके ही अपने माथे विराजते हैं और वो अपनी सेवा बाल भाव से ही लेते हैं। अपन लोगों के यहाँ 4 प्रकार विद्यमान है, जैसे सब जानते ही हैं, मैं खाली स्मरण कराऊंगा कि बालोपचार, ग्वालोपचार, राजोपचार और वेदोपचार, ये 4 प्रकार से अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है। अब ये बाल भाव से सेवा होगी, ग्वाल मतलब गोपाल, ग्वाले के रूप में प्रभु की सेवा होगी, और राजा के रूप में सेवा होगी, राजभोग आएगा, आप सिंहासन पे विराजेंगे, 3 कलश अथवा 4 कलश का सिंहासन होगा, चामर व्यजन होगा, आपको बीजना चमर का, मायूर व्यजन होगा, मोर छल, तो चमर, मोर छल, पंखा, छत्र, बाहर पधारेंगे तो छत्र भी चलेगा संग में। तो ये सब जो राज चिन्ह है ये, और भोग आरती के समय छड़ीदार पधारेंगे, छड़ीदार जी रहेंगे, तिलक उत्सव पंचामृत आदि में छड़ीदार सामने ठाड़े रहेंगे, क्यों? क्योंकि राजोपचार है। और शंखोदक होगा, धूप दीप होगा, अधिवासन होगा, पंचामृत होगा, ये सब वस्तुएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप वेदोपचार भी आप ग्रहण करते हैं, छठी पूजा होगी, भट्टी पूजा होगी, गोवर्धन पूजा होगी, तो अलग अलग प्रकार के पूजन क्रम भी सेवांतर्गत होंगे। आज से जो श्रीमद् भागवत विराजती है प्रत्येक वल्लभ कुल के यहाँ, और व्यास कुठा में व्यास जी बैठ के जो अष्टादशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन आप श्रीमद् भागवत जी का जो करते हैं, और इसमें भी जो संकल्प लिया जाता है उसमें यही संकल्प लिया जाता है कि श्री गोवर्धन धर की प्रीति और प्राप्त करने के लिए प्रति वार्षिक, प्रति सांवत्सरिक में ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का पारायण करूंगा। इस प्रकार से ही संकल्पबद्ध होके पूजन करके और सब किया जाता है। अब अगर हम भगवान मंदिर के विषय में आज बात करने बैठे हैं, तो भगवान मंदिर के विषय में एक वस्तु समझो कि एक छोटी सी झांपी से लेकर और 7 चौक के मंदिर तक सारी व्यवस्था जहां अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो मंदिर ही है। एक अपने यहां बहुत सुंदर शब्द है पाटोत्सव। पाट मतलब पट्टा। ठाकुर जी कहां विराजे? जब आप घर पधरा के लाए तो सिंहासनोत्सव नहीं, अपने राज्याभिषेक नहीं, अपने पाटोत्सव। उसमें भी शब्द में भी आप देखो कितना दैन्य है, कितना दास भाव भरा हुआ है। अपन प्रभु को क्या दे सकें? तो वही बस बात आ गई आचार्य चरण की, किमासनम ते गरुड़ासनाय, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय, किमस्ति देयम वागीश किम ते वचनीयमस्ति। तो जब जीव नमनमेव ही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते के सिद्धांत से जब कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो जो भी कुछ करे उसके लिए उसको आड़ी अथवा कानी की आवश्यकता पड़ेगी। और वो आड़ी और कानी होगी कि नंदराई जी की आड़ी सु, श्री यशोदा जी की आड़ी सु, श्री रोहिणी जी की आड़ी सु, ब्रजभक्तन की आड़ी सु, गोपीजनन की आड़ी सु, श्री स्वामी जी की आड़ी सु, श्रीमद आचार्य चरण श्री गुसाई जी की आड़ी सु, मेरे गुरुजनन की आड़ी सु, आरोग्यो प्रभु। तो ये सब जो आड़ी और कानी को मार्ग अपने यहाँ कहो गयो, वो क्यों कहो गयो? क्योंकि अपने यहाँ की व्यवस्था ही ये है कि अपन जो भी कुछ करें वो हमारे यशोदूत संगलालित नंद राजकुमार, हमारे श्री गोपीजन वल्लभ, हमारे ब्रजजन सर्वस्व, हमारे निकुंज नायक, हमारे रास नायक उस चीज को ग्रहण करें, अंगीकार करें, उसको प्रसाद रूप में हमको वापस दें। यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना जी, यह प्रसाद हो पाऊं। तो अपने यहाँ हर चीज में भक्त की वांछा है, भक्त की याचना है कि हे प्रभु
कि उच्चिष्ट भोजनो दासस्तव मायाम जय मही, मैं आपका उच्चिष्ट आपका जूठा खाऊंगा तो आपकी माया को जीत पाऊंगा। और भगवान का स्पष्ट उद्घोष है कि मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो इस समय यदि भगवान की इस माया को जीतना है तो भगवत आश्रित रहना, भगवत सन्मुखता बनाए रखना और भगवत प्रसाद ग्रहण करना, जितना हो सके जीवन में असमर्पित त्याग करना, ये सब वस्तुएं अति आवश्यक हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक वस्तु समझो कि अपने यहाँ पे तो जब ठाकुर जी को गुरु घर से पधरा के लावे वैष्णव, तब चाहे कितने ही भव्य मंदिर में पधराए, कितने भी सुंदर सिंहासन पे पधराए, 3 कलश का हो, 4 कलश का हो, अपनी अपनी परंपरा अनुसार, उन सब पे भी मैं आऊंगा। तो कहने का तात्पर्य तो भी आपका संबोधन तो यही रहने वाला है कि आपने पाटोत्सव किया, आपने ठाकुर जी को पट्टा पे पधराए। अब आप एक देखो वस्तु, 252-84 वैष्णव में लौकिक स्तर पे ऐसे ऐसे निष्कंचन वैष्णव रहे कि जिनके पास ठाकुर जी पधरा के सेवा करने के लिए एक छोटी सी झांपी से इतर कुछ व्यवस्था नहीं थी। जिस संपुट में, जिस संदूक में ठाकुर जी पधरा के लाए, जी अच्छा आश्चर्य की बात आप देखो, आज वैष्णव जगत में, मैं खास वैष्णव जगत को ये संबोधन करना चाहता हूं कि झांपियां अलग अलग प्रकार की बनवाते हैं, झांपियों में जाली लगवाते हैं ताकि ठाकुर जी श्वास ले सकें और ठाकुर जी को हवा उजास आ सके इत्यादि, ऐसे ऐसे अलग अलग खंड की, और उसमें इतने खांचे होने चाहिए, झारी बिराजनी चाहिए, बंटा होना चाहिए, माला जी आनी चाहिए, या कुछ सामग्री उसमें आ सके, दूध घर की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की झांपी डिजाइन करते हैं, बनवाते हैं, कुछ कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन जब आप श्रीमद आचार्य चरण का चरित्र पढ़ोगे ना, तो आचार्य चरण के चरित्र में श्री वल्लभ दिग्विजय में यदुनाथ जी स्पष्ट लिखते हैं, श्रीमन मुकुंदरायाख्यम ताम्र मंजुषायाम निधाय। एक तांबा की पेटी में छोटी सी मुकुंद राय जी को पधराया, वहीं अनंत शयनम जी नाम के शालिग्राम जी को पधराया, झांपी बांधी, हाथ में श्रीमद भागवत जी की पुस्तक ली और आप श्री वल्लभ पृथ्वी परिक्रमा पे शुरू हो गए। तांबा की पेटी में तांबा का बंटा, सीधी सीधी भाषा हम कहें तो ताम्र मंजूषा या मंजूषा पेटी को कहते हैं। और मैं ये बात इस अर्थ में कहना चाह रहा हूं कि इसमें कहीं कोई हवा उजास के छिद्र विद्र नहीं होते। ठाकुर जी को तो हम रोज पौड़ाते भी हैं, तो चारों तरफ से शैया में रजाई को, दुलाई को, चादर को बराबर खोस के ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिससे अंदर चूहा, छापकी, कॉकरोच वॉकरोच न प्रवेश करें। तो आप विचार करो कि ठाकुर जी तो पैक होके पहुंचते हैं। उसके बाद भगवान मंदिरों की अद्यावधि यही व्यवस्था है कि अंदर की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, सारे पंखा बंद कर दिए जाते हैं, जहां जहां अब आधुनिक काल में एसी लग गए हैं वहां एसी बंद हो जाते हैं, जहां जहां मंदिरों में हीटर्स होते हैं हीटर्स भी बंद हो जाते हैं। और ठाकुर जी बिल्कुल आप यूं देखो तो पूरा अंधेरा करके आप पहुंचते हैं ठाकुर जी, और सब तरफ से ठाकुर जी बंधे हुए होते हैं, उसी प्रकार से पहुंचते हैं। तो तब तब कौन जाके उनको श्वास लेवाता है, कौन वहां जाके ठाकुर जी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है? आप विचार करो कि बड़ों ने अपनी यहाँ जो रीत बनाई है वो क्या बनाई है कि अनवसर काल मतलब टोटल अनवसर। अब आपको कोई अवसर, कोई अवकाश ही नहीं है कि आप सेवा में जाओ। अब आप ठाकुर जी को ब्रज भक्तों के साथ छोड़ दो, ठाकुर जी को ब्रजवासियों के साथ, नंदराय जी, यशोदा जी के साथ, श्री स्वामी जी, चारों यूथाधिपति गोपीजनों के साथ छोड़ दो। वो ही ठाकुर जी की व्यवस्था है। ठाकुर जी को अपन कौन है श्वास देने वाले? वो प्रभु के कृपा से तो पूरे जगत में ये प्राणवायु का संचार हो रहा है, उनको अपन कैसे व्यवस्था दें? आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जालियों का क्रम और ये जो सब तरफ से हवा हवा आ सके, ये इसलिए बनाई गई झांपियों में ताकि अपने साथ जो ठाकुर जी की माला जी विराजती है वो सड़े नहीं, जिससे वो झाड़ी का नेवरा है, मान लो वो कोई कारण से गीला रह गया हो तो ठाकुर जी को सीलन की दुर्गंध न आए, इत्यादि कारणों से वो व्यवस्था दी गई थी। उसका ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं था। ठाकुर जी का संबंध होता तो श्री महाप्रभु जी का को तांबा की पेटी में लेके, और आश्चर्य देखो कि जिनके पास राजा कृष्णदेव राय और राजा रामभद्र जैसे सेवक हैं, उनको क्या सोना की पेटी नहीं मिल सकती थी? उनको चांदी की पेटी नहीं मिल सकती थी? क्यों तांबा की पेटी लेके घूमते थे? अरे भैया ये जंगल जंगल घूमते थे, कभी कहीं डाकुओं का उपद्रव, कहीं चोरों का उपद्रव, कहीं लूटपाट कुछ भी हो, क्यों जोखम लेके चलना? तांबा की झारी, तांबा के बंटा, तांबा की पेटी, तांबा कई सब चीज। तो अपने यहाँ क्या है? सेवा संपूर्णतया भाव का विषय है।
100%। आप जड़ाऊ के आभरण बसाओ, जड़ाऊ के खिलौना बसाओ, या आप काष्ठ के खिलौनाओं से ठाकुर जी में सेवा चलाओ, उसमें हर वस्तु में भाव की ही प्रधानता है और कोई प्रकार से भी ठाकुर जी संसेव्यमान पुष्टि मार्ग में तो नहीं एक वस्तु। इसलिए झांपी भी मंदिर है, पहला पक्ष। छोटी सी झांपी जी मंदिर है, जो आज भी निष्कंचन वैष्णव हैं, जो कोई कारण से इतनी व्यवस्था अपने ठाकुर जी को नहीं दे पाते, वो आज भी अपने घर के किसी न किसी कबाट में, किसी न किसी अलमारी में वो नीचे एक व्यवस्था करते हैं जहां ठाकुर जी विराजते हैं। ठाकुर जी वहां खूब आनंद से संसेव्य होके और सेवित होके उनके द्वारा पधराई हुई सारी सामग्री रोकते हैं और खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। छोटे से कबाट में विराजते हैं, अलमारी में विराजते हैं। इन सब बातों से वस्तु स्थिति क्या स्पष्ट होती है? सिद्ध नहीं होती, स्पष्ट होती है। वो स्पष्ट ये होती है कि हर व्यक्ति के घर में मंदिर होता है, हर व्यक्ति के घर में मंदिर होता है। इसी प्रकार से आचार्य बालकों के भी घर में मंदिर होता है। हमारे यहाँ एक प्राचीन काल में जो केस हुआ, वो केस में हमारे प्रपितामह नित्य लीलास्त स्वनाम धन्य प्रातस्मरणीय श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री पधारे। और वो केस में जब आपका वकील ने इंट्रोडक्शन किया तो उसने कहा कि बालकृष्ण जी के मंदिर में रहने वाले गोकुलनाथ जी महाराज आए हैं। तो उन्होंने वकील को रोका, उन्होंने कहा नहीं, तो मेरा गलत परिचय दे रहे हो, मैं बालकृष्ण जी के मंदिर में नहीं रहता, बालकृष्ण मेरे घर में रहता है। तो एक वस्तु हमको समझनी चाहिए कि हम कभी मंदिरों में नहीं रहते। गोस्वामी बालक कोई भी किसी मंदिर में नहीं रहते, वो अपने घर में रहते हैं, उनके घर में मंदिर होता है। और प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि सभी गोस्वामी बालकों के घर की ब्यूटी ये है कि उनके घर का 3/4 हिस्सा ठाकुर जी को डेडिकेटेड होता है और वो 1/4 में रहते हैं। जबकि आप देखोगे तो वैष्णव जगत में बिल्कुल इससे उल्टी वस्तु स्थिति विद्यमान है इस समय कि ठाकुर जी को वो अपने घर में 1/4 स्थान ही दे पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि देना चाहते नहीं है या देते नहीं है, ऐसा कुछ है। मैं ये बात कह रहा हूं कि वो लोग 1/4 में ही ठाकुर जी की व्यवस्था कर पाते हैं और 3/4 में खुद रहते हैं, जबकि हम गोस्वामी बालक ऐसे नहीं रहते हैं और रह भी नहीं सकते। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे विभाग होके कितने विभाग होते हैं? बड़ी बैठक, जनाना, अपने अपने पर्सनल बेडरूम, एक अपरस कोठा, संध्या कोठा, भोजन कोठा। वल्लभ कुल बालक के पास इतनी व्यवस्था होती है, अपरस कोठा, भोजन कोठा, संध्या कोठा या जिसको जप कोठा कहते हैं वो, एक कॉमन हॉल, एक लेडीज हॉल और इंडिविजुअल बेडरूम। दिस इज व्हाट अ गोस्वामी बालक लिव्स इन। लेकिन अब आप ठाकुर जी में शुरू हो तो निज मंदिर, निज तिवारी, शैया मंदिर, मणि कोठा, भोग मंदिर, पलना मंदिर, जगमोहन चौक, डोल तिवारी, कीर्तनिया तिवारी, गोवर्धन चौक, कमल चौक, रतन चौक, फूलघर, शाकघर, पानघर, दूधघर, बालभोग, रसोई, साजघर, गहना घर, खिलौना घर और तोसाखाना जहां पे बड़ा बड़ा सब साहित्य रहता है। वो अगर अपन ठाकुर जी के विभाग गिनने बैठे तो ठाकुर जी के तो कम से कम 40 से 50 विभाग निकलते हैं कि जहां पे ठाकुर जी की ही व्यवस्था विद्यमान है। और आज भी ये वल्लभ कुल का गौरव है कि वल्लभ कुल अपने घर में अपने ठाकुर जी को इतनी स्पेस देता है कि जिससे अपने आप ही उसका दास भाव सिद्ध हो कि ठाकुर जी की इतनी विशाल व्यवस्था में वो खुद भी एक छोटे से विभाग में रहते हैं, विराजते हैं। और अद्यावधि किसी और क्या मैं हो ना हो, मेरे यहाँ तो आज भी आप आओ, मेरे यहाँ के ये चीज देखो, हमने इस प्राचीन पद्धति को आज भी मेंटेन किया है कि ठाकुर जी में जितने विभाग हों उससे 1/4 विभाग में ही आचार्य विराज। अब इसका आनंद आप देखो कैसा है। जब आप श्रीनाथ जी जाओगे और आप श्रीनाथ जी में देखोगे तो श्रीनाथ जी के मंदिर के आगे जो निज तिवारी, जिसको जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर आप ले लो, अब श्रीनाथ जी के मंदिर में जिस जगह पे आज श्रीजी बाबा विराज रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीजी बाबा आज जिस गर्भगृह में विराज रहे हैं, मैं मर्यादा मार्गी एक शब्द यूज कर रहा हूं, गर्भगृह हमारे यहाँ की भाषा में निज मंदिर है। कायदे सर वो आपका जो निज मंदिर है वो अजब कुंवर बाई का बेडरूम है, अजब कुंवर बाई का वो शयन कक्ष है। सीधी भाषा में हम कहें तो शयन कक्ष। अगर वो अजब कुंवर बाई का शयन कक्ष है मतलब ऑटोमेटिकली
श्रीनाथ जी एक प्रकार के शैया मंदिर में ही विराज रहे हैं। तो शैया मंदिर के आगे का विभाग क्या होता है? मणिकोठा। इसलिए निज तिवारी को श्रीनाथ जी के क्या कहा जाता है? मणिकोठा। जहां से सब वो दादरा और पाटिया लगते हैं और वैष्णव खड़े होकर जहां से दर्शन करते हैं, वो स्थान को क्या कहा जाता है? डोल तिवारी। हमारे यहाँ आज भी वल्लभ कुल के नंदालयों में, जहां पे जबकि श्रीनाथ जी में निकुंजालय है, पूरा निकुंज की भावना है, लेकिन जहां नंदालय है वहां नंदालय में आज भी क्रमशः ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है पुष्टि मार्ग का कि शैया मंदिर होगा, शैया मंदिर के आगे मणिकोठा होगा, मणिकोठा के आगे डोल तिवारी होगी। श्रीनाथ जी में आज भी वैसा ही है। श्रीनाथ जी में आप स्वयं एक शयन कक्ष में विराज रहे हैं, इसलिए आप वो उसको शैया मंदिर जानो, निज मंदिर को। अपने आप उसके आगे मणिकोठा है, मणिकोठा के आगे डोल तिवारी है और वैष्णव डोल तिवारी में से दर्शन करते हैं और डोल तिवारी के सामने ध्रुव बारी है। तो आप एक वस्तु स्थिति को समझो कि निकुंज की पद्धति में और नंदालय की पद्धति में क्या फर्क है। निकुंज की पद्धति में सीधा निज मंदिर है जो खुद एक अपने आप में शैया मंदिर है, उसके सामने ही मणिकोठा है, मणिकोठा के आगे डोल तिवारी है। जबकि ऐसा नहीं है, नंदालय में निज मंदिर है, निज मंदिर के आगे निज तिवारी है, उसके आगे जगमोहन चौक है और वाम भाग में आप देखोगे तो शैया मंदिर, मणिकोठा और डोल तिवारी उसके पैरेलल में चलेगी। क्यों ये व्यवस्था दी गई? एक वस्तु को समझो। आज हस्ताक्षर रूप में कहां विराज रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन परंपरा से प्राचीन काल से हम ऐसा श्रवण कर रहे हैं कि एक हमारे यहाँ पुष्टि मार्गीय आर्किटेक्चर पे, पुष्टि मार्गीय स्थापत्य पे हमारे यहाँ एक ग्रंथ है डोल तिवारी का वाद। डोल तिवारी का वाद का मतलब होता है कि ये तिवारी का शब्द हिंदी का नहीं, संस्कृत का है, तिवारी का। तो वो तिवारी का वाद जो है ये एक अपने आप में डिबेट है। डिबेट किसके बीच में है? ये डिबेट श्री गुसाई जी और श्री गिरधर जी के बीच में है। और श्री गिरधर जी पूछ रहे हैं कि अपने यहां डोल, अपने यहां हिंडोला, अपने यहां रथ यात्रा और अपने यहां ये देव प्रबोधनी, ये सब इतने बड़े बड़े उत्सव हैं, 4 भोग के उत्सव हैं, ये अपने यहां दक्षिणाभिमुख ठाकुर जी क्यों करते हैं? ये पूछ रहे हैं गिरधर जी। और गिरधर जी को, जबकि ये सब तो या तो पूर्वाभिमुख होने चाहिए या उत्तराभिमुख होने चाहिए। किसी भी मर्यादा मार्गीय मंदिर में आप कभी नहीं देखोगे कि ठाकुर जी के कोई विशिष्ट उत्सव, कोई विशिष्ट पूजा, कोई विशिष्ट प्रकार की अर्चना प्रभु को दक्षिणाभिमुख करके हो रही। हमारे यहाँ होती है रथ यात्रा दक्षिणाभिमुख, चौथे भोग की आरती रथ का मुख दक्षिण में होता है। डोल तिवारी, डोल विजय जब प्रभु करते हैं तो डोल की आरती भी जब होती है तब ठाकुर जी के डोल का मुख उसी दक्षिणाभिमुख ही रहता है। हिंडोला प्रभु पूरे 32 दिन जो अधिवासन के हिंडोला झूलते हैं वो तो आप दक्षिणाभिमुख ही झूलते हैं। रथ यात्रा जो होती है, रथ यात्रा में भी आपका रथ का मुख घुमा के फिर बाद में दक्षिणाभिमुख कर दिया जाता है। देव प्रबोधनी के दिन जब देव जागरण होता है तो बाकायदा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वया चोत्थीय मानेन उत्थितम भुवनत्रयम त्वयि सुप्तो जगन्नाथ जगत सुप्तम भविदम उत्थितई चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव 3 बार बोल के सांगामाची खटखटा के, और जिस समय ठाकुर जी के सहित 33 कोटि देवता को जगाया जाता है तब उस समय पे भी आप देखो ठाकुर जी का मुख दक्षिणाभिमुख होता है। ये सब बातें नई पीढ़ी को कभी नहीं मालूम पड़ने वाली हैं। क्यों नहीं पड़ने वाली हैं? क्योंकि आधुनिक जितने भी गत 50 साल में पुष्टि मार्ग में मंदिर बने हैं उनमें डोल तिवारी ही नहीं है, उनमें डोल तिवारी है ही नहीं। क्यों नहीं है? आज पुष्टि मार्गीय मंदिर और पुष्टि मार्गीय हवेली का कॉन्सेप्ट क्या रह गया? ठाकुर जी का एक बड़ा निज मंदिर रूम और उसके आगे बड़ा हॉल, बस वैष्णव जहां से दर्शन कर सकें वो हॉल, उसी हॉल में अपने आप पार्टीशंस कर करके वो लगा लगा के टांड वांड, वो जहां जिसको जो मन फाया, कहीं नाव कर ली, कहीं डोला कर लिया, कहीं डोल कर लिया, हो गया कल्याणोत्सव। मेरे कहने का तात्पर्य है गोस्वामी बालकों ने, पुष्टि मार्गीय ट्रस्टी गणों ने, वैष्णवों ने पुष्टि मार्गीय स्थापत्य का जो सत्यानाश किया है इसका कोई रिपेयर अब नहीं हो सकता। गत 50 सालों में जितनी भी ट्रस्ट हवेलियां बनी हैं, मैं खास कहना चाहूंगा उनमें पुष्टि मार्गीय स्थापत्य और पुष्टि मार्गीय परंपराओं का, मैं ये बहुत खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूं लेकिन यही सत्य है, सत्यानाश किया गया है। कैसे? मैं आपको बताऊं। निज मंदिर जहां है उसके वाम भाग में अपने आप शैया मंदिर आना चाहिए।
हर जगह व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। मैंने दक्षिण भाग में मतलब ठाकुर जी के जमनी तरफ कई शैया मंदिर देखे, बड़ा दुख होता है। क्यों? अरे भाई वही तो वास्तव में निकुंज है, जो नंदालय में स्थित लालन है उनकी निकुंज कौन सी है? उनकी निकुंज शैया मंदिर ही है। शैया मंदिर उसी आड़ी होनी चाहिए जिस आड़ी श्री स्वामी जी विराजते। स्वामी जी की आड़ी कौन सी है? वाम भाग है, तो वाम भाग में होना चाहिए शैया मंदिर। उसके आगे गहनागर होना चाहिए, मणिकोठा होना चाहिए। श्रीनाथ जी में गहनागर कहाँ है? दक्षिणाड़ी है, दक्षिणाड़ी को गहनाघर कहते हैं। और उसी तरफ सारे इत्र, हाथ खासा करने की व्यवस्था, हर वस्तु जो तरल मंदिर में आवश्यक है वो उस तरफ रहती है। क्यों? वो श्री यमुना जी की निकुंज मानी गई है। तो श्री यमुना जी की निकुंज वो एक है। दूसरी छठी कोठा, जिसको छठी घर कहा गया है। श्रीनाथ जी में छठी घर है, हम सबके लोगों के यहाँ छठी कोठा होता है। वहां छठी घर को भी श्री यमुना जी की निकुंज मानी है, क्योंकि दैट इज पैरेलल टू दी शैया मंदिर ऑफ श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी का जो शैया मंदिर है वो श्रीनाथ जी का तो मूल निकुंजालय है ही, लेकिन आप जो विराज रहे हैं जहां पे, वो खुद भी अजब कुंवर बाई का स्थान होने के कारण, उसका शयन ग्रह होने के कारण, उसके सामने ही बड़ों ने मणिकोठा, उसके सामने ही डोल तिवारी, और डोल तिवारी की जमनी तरफ आप देखोगे तो श्री जी का जगमोहन चौक। जबकि अन्य वल्लभ कुल क्या देखो, नवनीत प्रिया जी से लेकर मदन मोहन जी पर्यंत आप जब मंदिर में घुसोगे तो कैसे घुसोगे? रतन चौक, कमल चौक, गोवर्धन चौक, जगमोहन चौक, निज तिवारी और निज मंदिर, यही आपको दर्शन होंगे। ये एक पैटर्न सातों घरों ने एक सी मेंटेन की। मतलब आप चाहे मथुराधीश में चले जाओ, आप विठलनाथ जी के दर्शन करो, द्वारकाधीश प्रभु में जाओ, गोकुलनाथ जी में जाओ, गोकुल चंद्रमा जी में जाओ, षष्टत्रयी में कहीं भी आप जाओ, बालकृष्णाल में जाओ, मुकुंद राय जी में जाओ, श्री कल्याण राय जी में जाओ, मदन मोहन जी में जाओ, ये व्यवस्था को पूर्वाचार्यों ने और हमारे पूर्वजों ने कभी भंग नहीं किया, क्योंकि ये ही नंदालय का एक्चुअल पैटर्न है। नंदराई जी के घर में नंदराज कुमार कैसे रहते हैं, वो ही अपने यहाँ का मंदिर है। वास्तव में अपना मंदिर अलग से कुछ नहीं है। क्यों? बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मता, अपने को घर में ठाकुर जी को रखना है, तो केवल अपने ही घर में रखना ऐसा नहीं है, नंदराई जी के घर में भी रखना है। तो नंदराई जी का घर जैसा होना चाहिए या जैसा रहा है, जैसा लीला में उसका वर्णन है, उसके ऊपर अपने यहाँ का पूरा मंदिर प्रकार डिजाइन किया गया श्री गोसाई जी के द्वारा। और श्री गोसाई जी ने ये व्यवस्था गोकुल से मांडी। आज भी राजा ठाकुर का मंदिर आप देखिए, जहां श्री नवनीत प्रिया जी सर्वदा से विराजे, क्या किस प्रकार से मंदिर है। आप ड्योढ़ी में से अंदर जाएंगे, सीधे जगमोहन चौक है, ठाकुर जी के वाम भाग में डोल तिवारी है, फिर मणिकोठा है, निज तिवारी है, अंदर शैया मंदिर है, इस तरफ पलना मंदिर है। और इस समय की जो सब भी तिवारी है उनमें दूधघर, बालभोग और रसोई आदि के सब विभाग हैं, क्योंकि दक्षिण आड़ी जो है जमनी तरफ वो सब यशोदा जी का और रोहिणी जी का विभाग है। तो जहां से माएं और मातृतुल्य गोपीजन जो हैं ठाकुर जी के, वो सब सामग्री पधराएंगी, वो सब दक्षिण आड़ी से आएगा। जो सब स्वामी जी के प्रकार से आएगा, उनकी भावना से, वो सब वाम भाग से आएगा। तो अपने यहाँ झारी कोठा कहाँ होना चाहिए, आरती कोठा कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे ठाकुर जी का भोग मंदिर हो, कहाँ ठाकुर जी का शैया मंदिर हो, कहाँ प्रभु का गहना घर या मणि कोठा हो, जहां ठाकुर जी की जोखम विरासती हो, ठाकुर जी की डोल तिवारी हो। आपको मैं बताऊं कि श्री गोसाई जी ने और गिरधर जी ने जो ये संवाद किया, ये संवाद को श्रवण गोकुलनाथ जी ने किया, और गोकुलनाथ जी ने अपने हस्ताक्षरों में ये डोल तिवारी का वाद, ये पूरा ग्रंथ लिखा कि ये वाद ग्रंथ हुआ। इसमें भी चर्चा विचारणा इतनी गंभीर हुई कि गिरधर जी ने ये पक्ष रखा कि नहीं, ये सब दक्षिणाभिमुख नहीं होना चाहिए, और श्री गोसाई जी ने सिद्ध किया कि नहीं, ये सब क्रम क्योंकि लीला में इस प्रकार के हैं, और डोल तिवारी अपने आप में श्री गिरिराज जी की तरहेटी को भी भाव है, यासु ये सब चीजें दक्षिणाभिमुखी होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, उन सबों के लिए डोल तिवारी का वाद एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा गया श्री गोसाई जी के द्वारा। और श्री गिरधर जी ने उसमें पूर्व पक्ष किया, उत्तर पक्ष में विद्वन मंडन वत ये ग्रंथ बना। इसका श्रवण जय जय श्री गोकुलेश अपने प्रभुचरण श्री गोकुलनाथ जी ने किया, चतुर्थ कुमार ने, और आपने इसको ग्रंथबद्ध करके अपने हस्ताक्षरों में लिखा। ये परंपरा से हम श्रवण करते आ रहे हैं, और जहां तक मेरी जानकारी गलत नहीं है, नाथद्वारा विद्या विभाग में, मतलब हमारे मूल स्थान में संप्रदाय के अद्यावधि ये ग्रंथ वहां पे हस्ताक्षर रूप में संरक्षित और संग्रहित है। और इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो सातों घरों का एक अपना पैटर्न रहा, वो सातों घरों का पैटर्न इसीलिए एक यूनिवर्सल पैटर्न रहा। आप किसी भी मंदिर, प्राचीन मंदिर में चले जाओ, आप सूरत के अन्य किसी मंदिर में चले जाओ, जैसे गोविंद जी का मंदिर है, लल्लू जी का मंदिर है, आप बड़ौदा के प्राचीन मंदिरों में चले जाओ, श्री कल्याण राय जी का मंदिर है,
आप अहमदाबाद के प्राचीन मंदिर में जो गोस्वामी हवेली दोशीवाड़ानी पोल में जहां पे श्री नटवरलाल प्रभु श्यामलाल प्रभु विराजते हैं, वहां तो साइमल्टेनियसली दो मंदिर हैं। साइमल्टेनियसली वहां दो मंदिर एक से बने हुए हैं, एक श्यामलाल प्रभु का मंदिर है और एक नटवरलाल प्रभु का मंदिर है, और सेम कॉन्सेप्ट के साथ है कि आपके घुसते ही एक बड़ी तिवारी है, कॉमन तिवारी, जो गोवर्धन चौक रतन चौक को रिप्रेजेंट करती है। उसके अंदर आप जाओगे तो जगमोहन चौक होगा, जगमोहन चौक के आगे निज तिवारी, उसके आगे निज मंदिर, उनके वाम भाग में उनका शैया मंदिर मणि कोठा और डोल तिवारी। उसी प्रकार से सेकंड पैरेलल मंदिर नटवरलाल प्रभु का, तो नटवरलाल जी जहां विराजते, अब तो दोनों भेले विराजते हैं, पर पूर्व काल में जब नटवरलाल श्यामलाल अलग अलग मंदिरों में विराजते थे, तब भी दोनों एक से साइमल्टेनियसली पैरेलल मंदिर एक से आर्किटेक्चरिंग के साथ बनाए गए थे। वो अभी अद्यावधि अपन देख सकते हैं। सेम सेटअप को अपन श्री मुकुंद राय जी और गोपाल लाल जी का जो मंदिर, गोपाल मंदिर काशी, षष्ठपीठ काशी के नाम से हम जानते हैं, आप वहां चले जाइए, जैसा मुकुंद राय जी के मंदिर का आप क्रम देखोगे, निज मंदिर, निज तिवारी, जगमोहन चौक, डोल तिवारी, कीर्तनिया तिवारी, सेम वैसा का वैसा श्यामला गोपाल लाल जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा प्राचीन। आज के तारीख में श्री मुकुंद राय जी और गोपाल लाल जी भी साथ में विराजते हैं, लेकिन अभी भी हम मंदिर को देख सकते हैं प्राचीन। श्रीनाथ जी जहां जहां विराजे, आप देखो कॉमन कॉन्सेप्ट रहा, पर्वत पे श्रीनाथ जी का मंदिर देखो, आज जहां श्रीनाथ जी विराज रहे हैं वो जगह देखो, घसियार का श्रीनाथ जी का मंदिर देखो, जो श्रीनाथ जी के मंदिर का पैटर्न है, उस पैटर्न को चेंज नहीं किया बड़ों ने, उस पैटर्न को कोई आचार्यों ने चेंज नहीं किया। लेकिन आज के समय में पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को, कि हम लोगों ने हमारे यहाँ के मंदिर विभाग को ही एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म करके केवल एक कोई दूरदर्शन की या दर्शनार्थ कोई व्यवस्था का ही कोई मंडाण हो, इस प्रकार से बस ठाकुर जी का एक बड़ा रूम, और उसमें भी शैया मंदिर के ठिकाने नहीं, क्योंकि अधिकांश जगहों पे तो ठाकुर जी अचल, और अचल होने के कारण जहां है वहीं पहुंच जाते हैं, जाग जाते हैं, और सब है, कहीं से कहीं पधारना आने की क्या जरूरत है। तो इत्यादि चीजों में देख के, उसमें भी हमारा मुंबई तो इस चीज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और मुंबई में आप अधिकांश बाकड़ा हवेलियों को देख सकते हो, जहां जगह मिली, जैसी जगह मिली, जितनी जगह मिली, जो जगह मिली उठाए और ठाकुर जी पधरा दिए, बस कोई व्यवस्था देखी नहीं गई कि ठाकुर जी की क्या सुखरूपता यहाँ होगी, ठाकुर जी कैसे विराजेंगे। अरे हमसे ज्यादा तो विचार वैष्णव करता है कि अपने ठाकुर जी जब पधरा के सेवा करता है तो वो कितनी चीजों का विचार करता है और कितना इस चीज का तापक क्लेश करता है कि मैं ये व्यवस्था मेरे ठाकुर जी को नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन वल्लभ कुल के पास जब कॉन्सेप्ट लेके लोग आते हैं कि भाई हमको यहाँ हवेली करनी है, वहां हवेली करनी है, तो क्यों एक सिंपल मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर कि भाई इतनी व्यवस्था और इतनी जगह तो ठाकुर जी को चाहिएगी, अगर तुमको मंदिर निर्माण करना है, नहीं तो मत करो, मत करो। आज भी आप देखो स्वामीनारायण संप्रदाय, विशेष करके बैप्स, एक पर्टिकुलर वो अपने एक फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं अपने आर्किटेक्चर में। आपको 1 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कि ये बैप्स का स्वामीनारायण मंदिर है, लेकिन पुष्टि मार्ग ये मंदिर कहीं भी हो सकता है, एक दुकान में भी हो सकता है, एक फ्लैट में भी हो सकता है, एक बंगलो में भी हो सकता है, किसी की पार्किंग में भी हो सकता है। ये क्या क्या नॉनसेंस है और क्यों है, क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा है कि ये कम्युनिटी के ऊपर ठाकुर जी पधरा पधरा के लावारिस ठाकुर जी को रखना, इससे अच्छा किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति को बुला के ठाकुर जी पधराना, जैसे 252-84 वैष्णव में देखने को मिलता है। आज भी मैं ये बात सुस्पष्टतया यहां से कहना चाहता हूं, इस पोर्टल से, इस मंच से, कि 10 लोगों के माथे एक ठाकुर जी नहीं पधराए जा सकते। ये कोई द्रौपदी नहीं है कि जिसको 5 पांडव मिलके संभाल लें। मैं तो पांडव शब्द भी भक्तों का शब्द कहां वहां यूज करना, लेकिन आप एक वस्तु समझो, मैं ज्यादा इस विषय में प्रकाश नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक व्यवस्था है अपने बहुत सुंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र के बाद अंत्यज, अंत्यज के बाद यवन, यवन के बाद म्लेच्छ, म्लेच्छ के बाद ट्रस्टी, लास्ट वर्ण है ट्रस्टी, ट्रस्टी वर्ण के बाद कोई वर्ण नहीं है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, यवन, म्लेच्छ और ट्रस्टी। तो ऐसे जगह पे आपको आके समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ चल रही हैं, ये व्यवस्थाएं कभी भी श्री गुसाई जी को अभिष्ट नहीं थी, कभी श्रीमद आचार्य चरण को अभिष्ट नहीं थी, और हमारे श्री गिरधर जी से लेके 7 बालकों तक, हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी तक, ये कभी इस प्रकार के मंदिर नहीं बने जिस प्रकार के बाकड़ा हवेली और बाकड़ा मंदिर आज की तारीख में बन रहे हैं। और ये बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? कि पहले तो हमारे यहाँ ये जिसको हम कहते हैं कि समाज के लिए मंदिरों की स्थापना, ये व्यवस्था रही ही नहीं।
फिर भी चलो, अगर कभी समाज को आप कहीं पे ऑब्लाइज कर रहे हैं, आप यदि समाज को ये व्यवस्था दे रहे हैं कि वो आके वहां अपने हाथ पवित्र कर सके, माथा टेक सके, भगवान नाम ले सके कोई ना कोई प्रकार के, तो वो किसी न किसी एक व्यक्ति के माथे तो वो सदन, वो भवन होना चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, जिसके माथे, किसके माथे विराज रहे हैं। आज आज अगर समझो कहीं 10 ट्रस्टी हैं, 5 ट्रस्टी हैं, एक ट्रस्टी आके इतना गर्व से कहे कि हाँ मेरे माथे विराज रहे हैं, वो कहेगा नहीं, क्योंकि अन्य 4 ट्रस्टी उसको हैरान करेंगे फिर कि अकेले तेरे कैसे विराज रहे हैं, हम भी तो ट्रस्टी हैं। तो इत्यादि चीजों में क्या हो रहा है, ठाकुर जी किसके, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और वो पांचों मिलके अपने अहंकार के कारण स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि इस महाराज के, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी पधराए। यहां तक कि मेरे पास तो एक ऐसा दृष्टांत आया, एक समाचार आया कि मैंने एक हमारे ही गोस्वामी बंधु महानुभाव को पूछा कि भाई अभी मैंने फॉरेन में आपके चित्र देखे, आपने भी वहां जाके ठाकुर जी पुष्टाए और आपके साथ एक और बालक ने भी वहां जाके ठाकुर जी पुष्टाए, तो आपके घर की रीत चलेगी कि उनके घर की रीत चलेगी? क्योंकि एक के पास नंदालय के ठाकुर जी की प्रधानता थी और एक के पास निकुंज के ठाकुर जी की प्रधानता रही। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि इसमें से किसके ठाकुर जी कहलाएंगे, ये आपने पुष्टाए तो आपकी रीत चलेगी कि उनने पुष्टाए? तो बोले नहीं नहीं नहीं, वहां के ट्रस्टियों का यही आग्रह था कि 2 गोस्वामी मिलके पुष्टाओ ताकि ठाकुर जी किसी के नहीं, ताकि कोई ना बोल सके कि ये मेरे मेरे द्वारा पुष्टाए हुए ठाकुर जी हैं। और कालांतर में भी 7 घर के बालक यहाँ के रह सकें, कर सकें। अरे तो 7 स्वरूप की हवेली का कॉन्सेप्ट क्या पहले नहीं था क्या? संप्रदाय में अद्यावधि है, बहुत जगहों पे अद्यावधि 7 स्वरूप की हवेली है। 7 स्वरूप की हवेली की व्यवस्था प्राचीन क्या थी? खाली निज मंदिर, निज तिवारी, जगमोहन चौक और डोल तिवारी शैया मंदिर के साथ मंदिर हुआ करते थे। प्राचीन बालक परदेश के ठाकुर जी पधरा के जब परदेश करते, उन मंदिरों में आते, मंदिर उनके लिए खुलते, साफ होते, वहां अपरस की व्यवस्था होती, वहां वो अपने ठाकुर जी पधरा के उतने दिन का वहां परदेश करते, विराजते। जब वो ठाकुर जी लेके और खुद भी परदेश करके वापस अपने घर पधारते, वो मंदिर वापस लॉक पैक होके, मार्जन आदि होके, मंदिर मार्जन आदि पैक हो जाते। तो ऐसी व्यवस्थाएं पहले पूर्व काल में रखी गई थी। उन्हीं को 7 स्वरूप की हवेली कहा जाता था कि जहां कोई भी वल्लभ कुल पधार के विराज सकें, परदेश कर सकें, प्रवास कर सकें, प्रवचन कर सकें, अपने अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकें, वहां वो अपने ठाकुर जी के मनोरथ आदि कर सकें। ये सब चीजों के लिए खाली मंदिर की व्यवस्था बना के दी जाती थी पूर्व काल में। और वहां के स्थानिक किसी एक बालक की जवाबदारी होती थी कि वो 7 स्वरूप की हवेली को वो मैनेज करे, जिससे तुम्हारी अपने भाई बंधु से बनती हो या ना बनती हो, अगर वो बाहर गांवों से पधारे और वो विराजना चाहें, तो आपकी तरफ से झुमका जी और चाबी और व्यवस्था और एक भीतरिया, एक खवास वहां जाए जो ये सब व्यवस्था मांडे कि वो अगर अपने ठाकुर जी पधरा के आएंगे तो सुख रूप कैसे वहां विराज पाएंगे। तो ये सब एक ये कोई धर्मशाला नहीं थी, ये बाकायदा 7 स्वरूप के मंदिर कहलाते थे। और ऐसे सदन, ऐसे भवन थे जहां आचार्य आचार्योचित पद्धति से रह सकें, वहां परदेश प्रवास पधरामनी आदि कर सकें और उस बहाने संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकें। तो मंदिर इस प्रकार के भी बना करते थे जो खाली हुआ करते थे। और खाली मंदिर में अपने अपने जो परदेश के, जिनको हम तपेली के ठाकुर जी कहते हैं, वो तपेली के ठाकुर जी पधरा के आके बालक खूब मनोरथ आदि भी करते थे, खूब उत्सव महोत्सव वहां करके 1.5 महीना 2 महीना वहां विराजते थे। तो मंदिर एक जो अपने कॉन्सेप्ट है, आज आपने वो प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सुरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिल से शरत माना, आपने जैसे ही नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शायनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम आदि बोला, तो आपका हृदय भी शेष रूप, आपका हृदय भी धाम रूप प्रभु का मंदिर ही है। तो अपने हृदय से लेके, अपनी झांपी से लेके, अपने एक कबाट अलमारी से लेके और अपने भवन से लेके और ठाकुर जी के स्वतंत्र भवन तक की व्यवस्था के साथ के मंदिर का जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट पुष्टि मार्ग में इतने ब्यूटीफुली रखा गया कि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्यानुपाती यथोप मिलितोपचार द्रव्य से परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक पुष्टि पद्धति के अनुसार सेवा कर सके। वो ढंग की जो व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने, पूर्वजों ने संप्रदाय में मांडी, उस पूरी व्यवस्था का भयंकर, यूं समझो, विस्फोट आधुनिक काल में किया गया। इसमें सभी लोग दोषी हैं, आचार्य परिवार, वैष्णव, ट्रस्टीगण और जिन लोगों का भी इसमें आग्रह रहा कि भाई चलेगा, इतना सा भी तुम व्यवस्था कर दोगे तो भी मंदिर तो बन ही जाएगा,
नहीं, गलत बात। अगर ये ऐसा होता तो फिर ये 7 बालकों को क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी कि लीला प्रवेश के पूर्व भी, आसुर व्यामो लीला के पूर्व भी श्री गिरधर जी को बुला के श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि स्थल विचारम कृत्वा यदुनाथ ग्रह कारिणम, तुम एक अच्छा स्थान, एक अच्छा प्लॉट देख के यदुनाथ जी का घर जरूर बना देना। यदुनाथ जी का घर बनाना रह गया है, और पद्मावती बहू जी के कारण घनश्याम जी का घर तो बन गया था, लेकिन सबसे छोटे रुक्मिणी बहू जी के आत्मजों में से एक श्री यदुनाथ जी का घर किसी कारण से नहीं बन पाया था गोसाई जी के आगे। इसी कारण से आप देखोगे गोसाई जी के पत्र में सुस्पष्टतया श्री गिरधर जी को आज्ञा है स्थल विचारम कृत्वा यदुनाथ ग्रह कारिणम। और इसके साथ में वापस कहना चाहूंगा, आज से 50 साल पहले तक के, आज से 50 साल पहले तक के किसी भी गोस्वामी बालक के 7 पीठाधिपतियों में से के लेटर हेड उठा के देखो, वो लोग ग्रहाधीश्वर शब्द प्रयोग करते थे। वो ना पीठाधीश्वर लिखते थे और ना वो अपने कौन सी निधि उनके माथे विराज रही है वो सब उल्लेख करते थे। वो सुस्पष्टतया लिखते थे कि प्रथम ग्रहाधीश्वर, प्रधान ग्रहाधीश्वर, द्वितीय ग्रहाधीश्वर, तृतीय ग्रहाधीश्वर, चतुर्थ ग्रहाधीश्वर, पंचम ग्रहाधीश्वर, षष्ठ ग्रहाधीश्वर, सप्तम ग्रहाधीश्वर। ग्रहाधीश्वर शब्द की ही प्रधानता संप्रदाय में रही, क्योंकि घर में ही ठाकुर जी विराजते हैं, और जहां ठाकुर जी विराजते हैं उतना स्थान, उतना एरिया उस घर में पुष्टि मार्गीय मंदिर है। घर में मंदिर है, मंदिर में किसी का घर नहीं है। मंदिर अपने आप में देवालय ही है, मंदिर अपने आप में देव सदन ही है, और जो व्यक्ति देव सदन में रहना चाहेगा वो अनधिकार चेष्टा है। रात्रि को तो सिंह द्वार पर्यंत पोरिया तक बाहर आके सोते हैं, वो लोग भी कभी ठाकुर जी के भगवान मंदिर में नहीं सोते हैं। जगमोहन चौक से बाहर ही सोने का विधान अपने आप पुष्टि मार्ग में रखा गया है। तो जितने भी लोग सेवक, टहलुआ, प्रचारक, पोरिया इत्यादि किसी को भी अगर सोना हो तो गोवर्धन चौक या कमल चौक में वो लोग सो सकते हैं रात्रि को। वो भी इस भावना से कि हम ठाकुर जी के मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ एक सिक्योरिटी वाइज सो रहे हैं, कोई बस केवल व्यवस्था मात्र के लिए नहीं, भाव उनको भी यही रखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज पुष्टि मार्गीय मंदिरों में जो स्थापत्य का अभाव आया है, इस कारण से अभी की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी कभी नहीं जान पाएगी कि ये डोल तिवारी का महत्व क्या है, कौन से क्रम यहां होते हैं। जो डोल तिवारी के सामने वाली तिवारी है उसको पलना तिवारी या ललित तिवारी कहते हैं। वहां पे जिनके यहाँ छठी कोठा अलग नहीं होते, वहां छठी पूजन वहीं होता है। और छठी पूजन जब होता है तो बालक का मुख पश्चिमाभिमुख होता है, छठी जी का मुख पूर्वाभिमुख होता है। तो छठी जी पूर्वाभिमुख पूजे जाते हैं और बालक छठी के सन्मुख विराज के छठी पूजन करते हैं। वो पूरा भाग क्योंकि दक्षिण तरफ, दक्षिण आड़ी अर्थात राइट हैंड साइड ऑफ ठाकुर जी आता है, इसलिए वो सब यशोदा जी का, नंदराई जी का, रोहिणी जी का एरिया माना जाता है। तो वहां सब बाल लीला प्रधान मनोरथ होते हैं। तो बाल लीला प्रधान सारे मनोरथों के लिए पलना तिवारी या ललित तिवारी और निज तिवारी, निज मंदिर, और जितने भी स्वामिनी प्रधान और चारों युथादि प्रधान मनोरथ होंगे, चाहे वो डोल हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, उन सब में ठाकुर जी के वाम भाग में दक्षिणाभिमुख प्रभु विराज के, और फिर आप सारी सेवा को अंगीकार करते हैं, सारे मनोरथ उत्सवों को अंगीकार करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि प्राचीन विधा जो मदन मोहन जी, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुलनाथ जी, ब्रज के मंदिरों में भी हम देख सकते हैं, और हम राजस्थान के अपने पुष्टि मार्गीय प्राचीन सभी घरों में, चाहे वो एकदम ठेठ में हम देखें तो जोधपुर के पास चौपासनी में विराजते श्याम मनोहर प्रभु का अपन घर देखें, या फिर अपन लोग अपनी ये कोटा की तरफ आ जाएं और देखें कि मथुराधीश प्रभु किस प्रकार से आप विराज रहे हैं, तो अपन इन सब चीजों को देख पाएंगे कि जो निज मंदिर, निज तिवारी और जगमोहन चौक, डोल तिवारी, मणि कोठा और शैया मंदिर, ये एक कम से कम 6 to 9 रूम्स के पैटर्न को कभी किसी भी संप्रदाय के विद्वान आचार्यों ने, आग्रही, सेवा आग्रही और परंपरा के आग्रही आचार्यों ने इस व्यवस्था को नहीं टच किया। और जिन लोगों ने, अच्छा दूसरा एक और बहुत खराब कॉन्सेप्ट जो संप्रदाय में है वो है फर्स्ट फ्लोर का मंदिर। देखो, ठाकुर जी का स्पर्श सर्वदा भूमि को होना चाहिए। जब हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी पे जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो जन्म के समय पे तो शैया मंदिर में भी शैया जियों को खड़ी कर दी जाती हैं,
ठाकुर जी के शैया मंदिर के मध्य में एक हल्दी का, कोरी हल्दी का अष्टदल पूरा जाता है, उस पे बड़ी मखमल की तेह बिछती है और माना जाता है कि जब रात्रि को जन्म होगा तो जन्म भी प्रभु का शैया पे नहीं होगा, भूमि पे होगा। तो जो और आचार्य चरण तो सुस्पष्टतया लिख ही रहे हैं, भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि। तो वो केवल भूमि मतलब ये पृथ्वी पे पधरना ही नहीं, आप ये देखो भूमि पे ही जन्म होता है। तो ठाकुर जी का जन्म भी वहां होता है कि जहां पे तेह बिछती है, अष्टदल होता है कोरी हल्दी का, और वहां ठाकुर जी का जन्म होता है, शैया जी पे जन्म नहीं होता है। और ये सब चीजों के लिए क्या जरूरी है? भूमि का स्पर्श जरूरी है। निज मंदिर के अंदर जो जो चीजें पधरा के निज मंदिर का निर्माण किया जाता है, जो जो स्थापत्य से और वास्तु से रिलेटेड वस्तुओं को पधराई जाती हैं, वो भी वहां पधराई जाती हैं कि जहां पे बराबर निज मंदिर में सिंहासन आने वाला हो, उसके नीचे एक अष्टदल हो और अष्टदल के अंदर वो सब चीजें पधराई जाएं और उसके ऊपर प्रभु विराजें। तो एक वस्तु समझो कि धामी धाम का जो अपना ठाकुर जी का संबंध है कि पूरा जो भगवान मंदिर है वो अक्षर ब्रह्मात्मक है। तो अक्षर ब्रह्मात्मा के प्रभु का जो धाम है, इस धाम में प्रभु सर्वदा से श्री स्वामी जी सहित आप रममाण हैं। और आप वो जो पुष्टि पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म कोटि ब्रह्मांड नायक कोटि कंदर्प लावण्य युक्त परम मोहिनी स्वरूप से आप जहां जो रूप में विराजते हैं, मैं पुनश्च कहूंगा, चाहे वो झांपी हो, चाहे वो पट्टा हो, एक गादी जी हो, एक अलमारी हो, एक वैष्णव के हृदय से भाव से निर्माण किया गया अपने घर के कबाट में एक सेक्शन मात्र हो, या उसने एक अपने ठाकुर जी को रूम डेडिकेट किया हो कि भाई मेरे घर में एक ये वाला जो कमरा है जिसको बिल्डरों की भाषा में पूजा रूम कहा जाता है, हम उसको सेवा का रूम कहें, वो अपना मंदिर ही तो है। आप भी चाहे कितना भी छोटी व्यवस्था में हो, अगर आप समझो कि कोई वस्तु, आप अपना चश्मा भी अगर वहां भूल गए हो, तो आप अपने बच्चे से क्या कहोगे? जा तो मंदिर ऊपर थी मारो चश्मो लैया, तो मंदिर ऊपर मारो चश्मो रह गयो छे। तो आप अपने घर की उस व्यवस्था को भी मंदिर ही बोलोगे, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि मैं ठाकुर जी के घर में रहता हूं। आप कहोगे नहीं, ठाकुर जी मेरे घर में रहता है। और यही तो संप्रदाय की ब्यूटी है कि हम मंदिर नहीं जाते, मंदिर का मंदिर हमारे घर में आता है और वो मंदिर में ठाकुर जी विराजते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो मैं आप सबके लिए खास ये लेके आया, ये वैष्णव मित्र मंडल से ये श्रीनाथ जी के मंदिर की भावना, ये बड़ा एक विस्तृत ग्रंथ है, बहुत भाव पक्ष से सबल सुदृढ़, और वास्तव में इसके भी यो समझो के रचयिता श्री हरिराय महाप्रभु आप स्वयं हैं। स्वयं श्री हरिराय शिक्षा सागर, कृपा सागर, मैं तो कहूंगा दीनता सागर, कृपा सागर, शिक्षा सागर, ऐसे हमारे 41 बड़े शिक्षा पत्रों के रचयिता श्री हरिराय महाप्रभु ने ही ये श्रीनाथ जी के मंदिर की भावना लिखी है, वैष्णव मित्र मंडल से प्रकाशित हुई है। और आप लोग सब इस ग्रंथ को इंदौर से आप मंगा सकते हैं और इसका सविस्तार आप अध्ययन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे श्रीनाथ जी के एक एक मंदिर की डेली, एक एक खिड़की, एक एक जिसको गुजराती में कहते हैं उमरा, उमरो डेली, और एक एक प्राचीर पे जो भी चित्रावली बनी हुई है, वो चित्रावली के पीछे भी कितना गहन भाव पक्ष है। अपने यहाँ चक्रराज, सुदर्शन जी और सातों ध्वजा, वहां से मतलब शीर्ष स्थान से लेके और सिंह द्वार के पोरिया तक आप चले जाओ, आप हर वस्तु में सिद्धांत पक्ष के रूप में कुछ देखोगे तो प्रमाण पुरस्सर भाव प्रधानता ही मिलेगी, क्योंकि भावो भाव नया सिद्ध, यही अपने यहाँ का एक सिद्धांत है श्रीमद आचार्य चरण द्वारा प्रतिपादित। और मैं वापस कहूंगा कि स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता तयो मुक्तिर नचान्यथा, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक एक पक्ष, और स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता ये दूसरा पक्ष। अपने यहाँ स्नेह से ही प्रभु संसेव्यमान है, अपने यहाँ दुराराध्य होते हुए भी प्रभु अपने यहाँ आराधनीय हैं, अपने उपास्य हैं, अपने द्वारा भजनीय हैं, अपने द्वारा सेव्य हैं। तो ऐसे जो हमारे परम कारुणिक करुणा वरुणालय पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, ये अपनी कोई भी व्यवस्था में प्रसन्न है, और कितने भी छोटे से छोटे सदन से लेके बड़े से बड़े 7 चौक के मंदिर को भी अक्षर ब्रह्मात्मक लीला सृष्टि का मूल स्थान और धाम रूप बना के और अपने साथ क्रीड़ा करने को तैयार हैं। बस अपनी भाव दृष्टि
सजाग होनी चाहिए, अपनी भाव दृष्टि ओतप्रोत होनी चाहिए पूर्वाचार्यों के भाव से, और सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई है जो श्रीमद आचार्य चरण ने, तो वो ब्रज भक्तों के जैसा स्नेह बारंबार कल्टीवेट करने के लिए, नर्चर करने के लिए अपने बॉडी में, अपने माइंड फ्रेम में, अपने इंटेलेक्ट में और अपने इमोशंस में अपन ला सकें, उसका एक प्रयास जरूर करना चाहिए। भाव शून्य करी गई 56 भोग की सेवा से लेके भाव पूर्वक की गई मिश्री भोग की सेवा सर्वाधिक महत्व की है ठाकुर जी के लिए। इस पक्ष को तो संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति नहीं झुठला सकता। ये भाव प्रधान अपना संप्रदाय है, और इस भाव रूपी रियलिटी, भाव का तो मैं सुस्पष्ट अर्थ करता हूं रियलिटी, जो वास्तविकता है उसी का आप भाव कर सकते हो। लीला नित्यतावाद है, प्रभु एवं करता हता, ये सब गलत बात है। प्रभु एवं करे छे, यही सही भाव है कि प्रभु आज भी अपने साथ ये सब कर रहे हैं। अगर प्रभु करता हता तो आज सेवा करने की क्या जरूरत है? हता ना द्वापर युग की बात है ना, सारस्वत कल्प की बात है, अभी श्वेतवारा कल्प में करके क्या मतलब है? ऐसा नहीं है। प्रभु में लीला नित्यतावाद है, प्रभु अपने साथ आज भी विराज रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताओ महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा क्यों करते हैं? तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतम त्यजेत, कुछ ना कुछ लीला अपने साथ भी तो हो रही है ना, तो उसको प्रभुकृत लीला समझ के तुम अपनी चिंता को छोड़ दो, यही तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है। तो तथैव तस्य लीलेति, ये लीला है प्रभु की कि जो अपने साथ हो रही है। तो जैसे ब्रजभक्तों के साथ हुई, जैसी गोपीजनों के साथ हुई, जैसी गोप ग्वाल सखाओं के साथ हुई, वो अद्यावधि प्रभु अपने साथ कर रहे हैं। अपन उस लीला का दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उस लीला का अनुभावन, वो स्पंदन अपन नहीं झेल पा रहे हैं कि ये लीला वास्तव में कहीं और नहीं चल रही है, ये अपने साथ ही चल रही। इसीलिए तो श्री महाप्रभु जी ने कहा ना कि ये चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसु पंचधा हृदय मम, ये सब आके मेरे हृदय में विराजे। क्योंकि जब तक हृदय में ये नहीं विराजेगा भाव पक्ष, तब तक आप कितनी भी कृति करो वो कृति व्यर्थ ही है। लेकिन गोसाई जी का वचन है कि भगवत सेवा वैयर्थ्या संभवा जन्मांतरेषु फलिष्यति। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि भले अभाव पूर्वक भी जो भी अपने हाथ पवित्र अपन ने अपने प्रभु की सेवा में करे हैं, वो कभी भी निष्फल जाने वाले नहीं हैं। मैं जो कह रहा हूं कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो मतलब ये कि तुम उसका आनंद नहीं ले पाओगे, लेकिन अर्थ यही है कि इतनी सी विराई की सी सेवा को फल मानत तो मेरु समान, तो वो तो प्रभु हैं। 9 विज्ञप्तियों में एक बहुत सुंदर श्लोक श्री गोसाई जी ने लिखा है, बलिष्ठः अपि मद दोषा तत्क्षमाग्रेति दुर्बलः तस्य ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणाम जीव धर्मतः। अपन क्या है? अपन दोषों से भरे हुए होने के कारण, जीवा स्वभावतो दुष्टा होने के कारण अपन लोग प्रायः अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया वाले हैं, लेकिन अपने इतने बलिष्ठ दोष ही नहीं है जितनी क्षमा करने की सामर्थ्य प्रभु की प्रबल है। तो वो जो प्रभु के अपने सर्वापराधों को क्षमा करने की जो प्रभु में प्रबलतम सामर्थ्य है, उस ईश्वर धर्मत्वात् आज अपन सब ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हैं। अपन अपने स्व सामर्थ्य से या अपने स्वरूप बल से यदि भगवत सेवा में जाएं तो मैं समझता हूं आज अपन कंठी पहनने के भी अधिकारी नहीं है। ये 2 कंठी भी अपन जो पहन रहे हैं ना, अब लोग कहते हैं कि ये तो कंठी एक आत्म निवेदन को और एक नाम निवेदन को, अरे मैं कहता हूं ये महाप्रभु जी और गोसाई जी का प्रतीक है कि महाप्रभु जी और गोसाई जी ने अपने ऊपर कृपा करी है, करके आज अपन ये वैष्णवी जीवन अपने घर में जी पा रहे हैं। नहीं तो आज के समय में तो नारद जी के वचन याद करो, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तु सारम स्थले स्थले। आज कहीं सांप्रदायिक वैष्णवता देखने को नहीं मिलती। वैष्णवता है, वैष्णवत्व है, लेकिन वो संप्रदाय से बंधा हुआ होना चाहिए। और संप्रदाय का मतलब होता है परिपाटी, और ये परिपाटी केवल अष्टयाम सेवा में मंगला से लेकर शयन पर्यंत नहीं होती। आप कैसी व्यवस्था प्रभु को देते हैं, कैसी गादी प्रभु को देते हैं, कैसा धाम प्रभु का अपने बनाते हैं, प्रभु के सुख का आप क्या क्या विचार करते हैं। आप ठाकुर जी की एक दूधघर की छोटी चौकी, एक कंसखड़ी की चौकी, एक सकड़ी की चौकी, 3 व्यवस्था प्रभु को देते हैं, तो प्रभु को आनंद आता है कि ये मेरे उन गोपी जनन के आड़ीसु, ये मेरे इन ब्रज भक्तन के आड़ीसु, ये मेरे यशोदा जी और श्री रोहिणी जी के आड़ीसु। तो उनको वो 3 छोटी छोटी चौकी भी दिखती हैं कि हाँ ये 3 चौकी पे 3 वस्तुएं एक साथ उठाई, सबकी सब चीज धर दी और कह लो आरोग लो। ये क्या कोई व्यवस्था है क्या संप्रदाय? ये व्यवस्था नहीं। व्यवस्था परिपाटी से युक्त होनी चाहिए। परिपाटी में है भाई झाड़ी के नीचे तबकड़ी आवे तो तबकड़ी आवे,
बंटा के नीचे वो एक आच्छादन का वस्त्राव है तो आच्छादन का वस्त्राव है, कोई सामग्री साजनी भी हो ठाकुर जी के पाठ पे, ठाकुर जी के सिंहासन पे, तो लाल वस्त्र बिछे, लाल रंग अनुराग को वो छुआवे नहीं। तो ऐसे इत्यादि ये सब भाव पक्ष है। मैं तो वैष्णव कहता हूं कि अपने घर में सही भाषा का प्रयोग करोगे तो अपने आप पुष्टि मार्ग तुम्हारे जीवन में आएगा। लोग एक तस्तरी लाओ, एक तबकड़ी लाओ, एक थाली ले आओ, एक डिश ले आओ। डिश क्या होता है? डिश विश कुछ नहीं होता संप्रदाय में। वैसा ही क्या होता है, हमारी भोगनी टेबल, अरे हमारी भोगनी टेबल होता है, भोगनी टेबल नहीं होता, भोग की चौकी होती है। तो ऐसा सब बहुत सी चीजें हो गई हैं कि अपन लोग अपनी भाषा से दूर जाते जा रहे हैं। और मैं आपको वापस कहना चाहूंगा सभी को कि आपको सामान्य कोई त्योहार भी मनाना हो ना, कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल अपने घर में करना हो, तो सबसे पहले वेशभूषा, भाषा और भोजन, ये चार चीजों को जोड़ना पड़ता है। ये वेशभूषा, भाषा और भोजन को आप जोड़ोगे ना, तब वो त्योहार का आनंद आएगा कि हाँ उसकी वेशभूषा पहरी, उस दिन जो गाना है, उस दिन के जो फोक सॉन्ग्स हैं, उसके दिन के जो लोकगीत हैं, वो सब आपको आते हैं गाने, और आप वो सब चीजों के दिन जो फेस्टिविटीज पे जो बनता है वो आप बना के लोगों को खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से तो त्योहार बनता है। इसी का अलौकिकीकरण जो है वो राग भोग श्रृंगार है। राग भोग श्रृंगार से युक्त अष्टयाम प्रभु की सेवा उत्सवांग क्रम के साथ जो अपन करते हैं वो अपनी पुष्टि पद्धति से की हुई भगवत सेवा है। यही तो ब्रज भक्तों ने किया है कि सहजता से जो उनके पास था वो उनने प्रभु को समर्पित किया है। बस तस्मादादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम और निवेदि भी समर्प्य सर्वम कुर्यादिति स्थिति इत्यादि वचनों का अनुसंधान करते हुए कृष्ण सेवा सदा कार्या। आप देखो आश्चर्य और आनंद की बात, महाप्रभु जी ने भगवन मंदिर पे कोई कमेंट ही नहीं किया है। महाप्रभु जी के भगवन मंदिर को लेके कोई विधि निषेध वाक्य मिलेंगे ही नहीं आपको। महाप्रभु जी ने जो व्यवस्था मांडी है वो श्रीनाथ जी में देव द्वार राख्यो है। तो जो श्रीनाथ जी में जो देवालय का प्रकार आपने स्थापित किया है वो वार्ताओं के अनुसंधान से पता चलता है कि वहां किस प्रकार से आपने देव द्वार रखा है। आज भी श्री जी बाबा जहां विराजते हैं, श्रीनाथ जी के आगे का जो आलिया है वहां पे घंटी जी विराजते हैं। घंटी जी क्यों विराजते हैं? क्योंकि घंटी जी पे गरुड़ विराजता है। और किसी भी विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, वैष्णव मंदिरों में गरुड़ स्तंभ भगवान के सामने होता है। आज भी श्री जी के सामने ही कांसा का, चांदी का और रसेला, ये तीनों प्रकार के घंटा, घंटी जी जिन पे गरुड़ जी विराजते हैं वो वाम भाग के सन्मुख के आलिया में ही विराजते हैं। श्रीनाथ जी में गरुड़ स्तंभ सामने ही है। आप बहुत सी चीजों को देखोगे तो श्रीनाथ जी का मंदिर, प्राचीन देवालय और निकुंजालय, इनका एक सम्मिश्रित स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आज श्रीनाथ जी जाके भी लोगों का ध्यान इन सब बातों पे नहीं जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो क्या केवल वहां क्या चौपाटी के लिए जाते हैं, गॉड नोज, लेकिन उनको जाके मंदिर के स्थापत्य को देखना चाहिए। क्यों, किस जगह पे इतनी ही वस्तु दी गई हैं। आज भी इतने साल हो गए, 350 साल हो गए श्रीनाथ जी को यहाँ विराजते हुए, तथापि अभी भी क्यों मंदिर को बड़ा नहीं किया गया? क्यों इतने सारे विजिटर्स, दर्शनार्थी, पिलग्रिम्स, टूरिज्म होते हुए भी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन की व्यवस्था को बढ़ाया नहीं गया? नहीं छेड़ा जा सकता है। जो चीजें जिस प्रकार से श्री हरिराय महाप्रभु ने, काका वल्लभ जी ने, श्री दामोदर जी ने, इन सबों ने मिलके स्थापित की हैं, जो बनाई हैं, उन प्राचीरों में एक कील लगाने के पहले भी 4 बार आज्ञा लेने जाया जाता है। अभी आपने रिसेंटली अगर तिलकायत के घर की प्रशासनिक पोस्ट देखी हो तो आप देखोगे कि अभी अनार चौक का रिपेयरिंग हुआ। अनार चौक के रिपेयरिंग में 2 हाथ नीचे से एक नारियल निकला जो अभी भी जल से भरा हुआ है। तिलकायत महाराज से पूछा गया कि इसका क्या करना, उन्होंने कहा वापस इसका पूजन करो और जो जहां था उसको वहीं वापस स्थापित करके वापस पाट दो। तो वापस जो नई टाइलिंग हुई, नई जो भी चीजें की गई, उसके लिए जो जहां प्राचीन वस्तु थी उनको वहीं रखा गया। रतन चौक को हम रतन चौक कहते हैं, वहां कौन से रत्न बिछे हुए हैं? एक समय पे वहां श्री गोविंद लाल जी तिलकायत के कार्यकाल में एक महानुभाव श्रेष्ठी वैष्णव आए और बड़े धनाढ्य थे। उन्होंने आग्रह किया कि मैं श्रीनाथ जी के रतन चौक की रिपेयरिंग कराना चाहता हूँ, कैसा उबड़ खाबड़ है और वैष्णवों को कितनी दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा क्यों कराना चाहते हो? तो कि नहीं, कैसी व्यवस्था आप देखो ना, और रतन चौक नाम है तो रतन चौक जैसा दिखना भी तो चाहिए। श्री गोविंद लाल जी महाराज तिलकायत उस वैष्णव को लेके गए, एक पर्टिकुलर स्थान पे अपने आदमियों का यहाँ खोदो, कम से कम 2.5 किलो का पुखराज निकाल के दिखाया। 2.5 किलो का पुखराज, आप पुखराज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल गया, शायद टोपाज कहते हैं, टोपाज। और 2.5 किलो का टोपाज निकाल के बताया कि तेरे को और कुछ देखना है कि इंदर और रतन चौक में क्या क्या बिछा हुआ है? उसने कहा कि नहीं सरकार, नहीं देखना है।
वापस उसको जगह पे स्थापित कराया गया। अद्यावधि रतन चौक जैसा है वैसा है, कितने मणिमाणिक के उसमें आज भी जड़े हुए हैं किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो श्री जी का दरबार है। तो अपने प्राचीन धाम, अपने प्राचीन मंदिर, प्राचीन परंपराएं और प्राचीन पूर्वाचार्यों के किए हुए स्थापत्य के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। जो जैसी परिपाटी से आप कितना परिमाण नक्की कर सकते हो कि इसको छोटा बनावे, बड़ा बनावे, इससे बड़ा बनावे, आप करो, लेकिन जो एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ नंदालय संप्रदाय में चला आ रहा है उसको जब से छेड़ा गया है, आप देखो संप्रदाय में लोग सुशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं सांप्रदायिक सेवा भावना से, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इस पर्टिकुलर समय पे की गए ये महामहोत्सव, ये वर्षोत्सव में ये यहीं पे क्यों होता है और यह कहाँ होना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए मैं वहां उपस्थित शास्त्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि ऐसे सेमिनार्स और ऐसे वर्कशॉप्स और ऐसे लेक्चर सेशंस और रखे जाएं जिससे लोगों को कुछ पुष्टि मार्ग के 500 वर्ष की गौरवशाली बातों से भी परिचित कराए जा सके। आप लोग सिद्धांत बोध और संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उनका बहुत सुंदर विश्लेषण और विवेचन तो समाज के आगे आप कर ही रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेडिशंस, कल्चर और अपने यहाँ के इमोशंस से भी जोड़ने के लिए आप कुछ ऐसी वस्तुएं भी करें कि जिससे पुष्टि मार्गीय प्राचीनता का उन सबों को आनंद आए। बस इसी के साथ मेरे मन में जो भी आपके साथ आज वार्ता करने को था मैं उसको यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उपसंहार भी शास्त्री जी ही करें इस पूरे विषय का, तो मुझे भी कुछ आनंद मिले। और बस आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं प्राचीन आचार्यों के द्वारा किए गए कुछ कार्यों का स्तवन यहाँ पे आप सभी के साथ बैठ के कर सकूं। इसके लिए मैं पुनश्च चिरंजीव श्री आदित्य भाई शास्त्री जी और आदरणीय श्री कृष्णदत्त जी शास्त्री जी का मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पे टीका करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है, और मेरी बातों में किसी को कोई बात गलत लगी हो तो मैं खास आग्रह रखूंगा कि प्राचीन परंपरा में एक बार जाके देखें, आपको मेरी कोई बात गलत नहीं लगेगी। पूर्वाचार्यों ने जो किया है वो बहुत सुंदर किया है, और आपके घर विराजते ठाकुर जी खूब आनंद में विराज रहे हैं, मैं आपको इसका आश्वासन देने को तैयार हूं। और मैं ऑथेंटिकेट करता हूं कि वैष्णव आज भी भावपूर्वक अपने घर में जो सेवा कर रहे हैं, पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण श्री यमुना जी की आड़ी से, श्री महाप्रभु जी की और श्री गुसाई जी की आड़ी से, आपके गुरुजनों की आड़ी से उसको 100% स्वीकार कर रहे हैं। बस इसी के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय। पुनः एक वक्त आप श्री चरणों में प्रणाम करूं। વચનામૃત શ્રવણ કર્યા પછી એક વાત આપણે સર્વે સમજવા જેવી છે। કેટલીક વાતો એવી હોય કે જે પોતાના ઘરની વાત હોય, જેવી રીતે શ્રી ઠાકોરજીના બિરાજમાન થવાનું સ્થાન છે એનું નામ છે નંદાલય, અને ઘરની વાત ઘરની વ્યક્તિ જેટલી સારી રીતે જાણી શકે અને જણાવી શકે એટલું આપણે ના જાણી શકીએ। તો પુષ્ટિ માર્ગ એક વિશાળ ઘર, શ્રી ઠાકોરજીની અનહદ કૃપા, ભગવાને દરેકને કંઈક ને કંઈક સેવા સોંપી, સર્વોચ્ચ સ્થાને શ્રી ઠાકોરજી બિરાજમાન છે, અને શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ અને શ્રી ઠાકોરજીની સેવા સંબંધી જે પણ આપણને સમજણ જોઈએ, શ્રી વલ્લભકુલના આચાર્ય બાળકો અવિરત પ્રયત્નશીલ છે જેને માટે, અને વૈષ્ણવોને માટે સર્વના દ્વાર કાયમને માટે ખુલ્લા જ છે। તો શ્રી ઠાકોરજી છે, શ્રી વલ્લભકુલ છે, એક જવાબદારી શ્રી આચાર્ય ચરણો સોંપી તે ही સન્માર્ગ રક્ષકા વિદ્વજનોને કહ્યું કે જેટલી સેવા થઈ શકે એટલું આપ પણ આપનું યોગદાન આપવું જે જરૂરી છે સમાજને માટે। અને બાકીના વૈષ્ણવો છે, અનહદ કૃપા શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાનો પણ અનુભવ મળે, શ્રી વલ્લભકુલ પણ અનુગ્રહ કરે, ભાવ પોષણનું કાર્ય, સિદ્ધાંતના જ્ઞાનનું કાર્ય, જેને જ્ઞાન કહી શકાય, યથાશક્ય સેવા જેનામાં જે સમજણ હોય એ પ્રમાણે વિદ્વત વર્ગ કરે,
અને આ રીતે આખો જ સમાજ એક થઈ એકજૂટ થઈને રહે અને એમાં જ આપણા સર્વની શોભા છે. એટલે આપશ્રીને વિનંતી કરી હતી જે ઠાકોરજીને બિરાજવાનું સ્થાન એના માટેની આપણને સર્વને સમજણ આપે. અને એક વસ્તુ આપ લોકોએ પણ અનુભવી હશે, મેં પણ અનુભવી છે, 3 થી 4 વખત મેં અનુભવી. એવા પ્રવક્તાના અલગ અલગ પ્રકાર હોય, એમાં કેટલાક વક્તવ્ય એવા હોય છે કે જે સહજ હોય છે, વાંચ્યું હોય, વિચાર્યું હોય, બધી જ તૈયારી કરી હોય, પણ એ વક્તવ્યમાં પછી શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી આચાર્યચરણ જે બોલાવે છે એ સર્વોપરી સ્થાન પર હોય છે. પછી એમાં કોઈ ગોખેલું લખેલું આ તે બધું ન હોય. આપશ્રીના વચનામૃતમાં આપણને આ વાત અનુભવવા મળે છે કે ભગવત કૃપાથી અને શ્રી આચાર્યચરણની કૃપાથી જે સહજતા છે અને સહજતાની સાથે સાથે જે સત્યતા છે, કારણ કે સત્ય એ બોલી શકે કે જે નિર્ભીક હોય. તો આપશ્રીનો એક બેઝિક નેચર આપણે કહી શકીએ, કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી, જે પ્રમાણિત છે એ હું બોલું છું. અને એટલા જ માટે આપણને સર્વને એક પુસ્તકના દર્શન કરાવ્યા, એક ગ્રંથના દર્શન કરાવ્યા કે જેમાં શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીની દિવ્ય વાણી, જે આપણે નંદાલયને સંબંધિત છે, શ્રીનાથજી બાવાના મંદિરને સંબંધિત છે, જેના દ્વારા આપણે જ્યારે મંદિરમાં જઈએ તો એ ભાવને જાણી શકીએ છીએ. વાહ! જેવી રીતે રતન ચોકને માટે આપણને આજ્ઞા કરી. આપણે જઈએ તો છીએ, પણ એની અંદરનું રહસ્ય શું છે? આવા પોખરાજ હોય, આવા હીરા હોય. આપણે વાર્તા પ્રસંગમાં વાંચીએ છીએ કે બાદશાહે શ્રી ગોસાઈજી પ્રભુચરણને એક મણી આપ્યો. શ્રી ગોસાઈજી પ્રભુચરણને એને પધરાવી દીધો. બાદશાહને ગમ્યું નહીં, અને ત્યારે શ્રી ગોસાઈજી પ્રભુચરણે શ્રી હમણાજીમાંથી કેટલાય દિવ્ય મણી કાઢીને બહાર દેખાડે, ત્યારે બાદશાહને ખ્યાલ આવ્યો. સહી આ બાત. દ્રષ્ટિ છે અને આ જે સમજણ છે. કેટલીક વસ્તુ એવી છે કે જે આનુષંગિક પ્રાપ્ત થાય, જે શ્રી વલ્લભકુલ પાસેથી આપણને જાણવા મળે. ગમે એટલા ગ્રંથો વાંચીએ એમાંથી આપણને, અને એટલા જ માટે આપશ્રી જેવા વિદ્વાન આચાર્યોની આપણને ખૂબ જરૂરિયાત છે. અને આ જ એક પ્રયોજન હતું. એટલા જ માટે વિનમ્રતાથી વિનંતી કરી હતી, અને કેવળ આપશ્રીને સારું લાગે એટલા માટે નહીં. થોડી પ્રતિકૂળતા હોવા છતાં પણ જે પ્રમાણે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે આપણા સર્વની પર અનુગ્રહ કરવાને માટે. અને એમાં પણ વચનામૃતના આરંભમાં આપ લોકોએ સાંભળ્યું હશે આજના દિવસનું મહાત્મ્ય. તો હૃદયમાં આ એક ભાવ હતો કે જે દિવસથી શ્રી સુખદેવજી મહારાજે વાણી પવિત્ર કરી એ દિવસ મારી વાણી પવિત્ર થાય છે. સહી બાત. એની પાછળનો જે ભાવ છે, જ્ઞાન અને ભાવનો સમન્વય જ્યારે થાય છે ત્યારે વાણી અસરકારક થાય છે. તો આટલી વિનંતી આપશ્રીએ સ્વીકારી. એના માટે પુનઃ એક વખત દેશ વિદેશના જેટલા પણ શ્રોતાઓ વૈષ્ણવો આ શ્રવણ કરી રહ્યા છે એ વૈષ્ણવોને પણ હું કહીશ, આપશ્રીના વચનામૃત જે આપણો વિષય છે એનું જે મૂળ છે શ્રીનાથજીની પ્રાકટ્ય વાર્તા, એની પર થઈ રહ્યા છે. ફેસબુક ઉપર આપશ્રીના પેજ ઉપર આપ લોકોને શ્રવણ કરવા મળશે, અને જે સૈદ્ધાંતિક વક્તવ્ય છે એનો આપ સર્વ લાભ લઈ શકશો. તો જો આપ લોકોની ઈચ્છા હોય હું તો આગ્રહપૂર્વક કહીશ કે અવશ્ય આપ લોકો એને શ્રવણ કરો. તો પુનઃ એક વખત આપશ્રીના માથે બિરાજમાન શ્રી ઠાકોરજીના વિમલ શ્રી ચરણોમાં અમારા સર્વના દંડવત પ્રણામ, અમારા સમસ્ત પરિવારના દંડવત પ્રણામ. એવં શ્રી સરકારશ્રી એવં આપશ્રીનો સમસ્ત પરિવાર અમારા દૈન્યપૂર્વકના દંડવત પ્રણામ સ્વીકાર કરે, અને પુનઃ પુનઃ જે પ્રમાણે આપશ્રીનો અનુગ્રહ છે એવો જ અનુગ્રહ અમારી પર બન્યો રહે, આટલી વિજ્ઞપ્તિ કરી અને પુનઃ એક વખત આપશ્રી પધાર્યા એના માટે હૃદયપૂર્વકનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને સાધુવાદ આપશ્રીના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત.